Hello friends, how are you? Fine. So guys, once again you are most welcome to Avinash English classes, and you know that we are discussing passive construction now and we have completed up to present simple. Okay guys, so now it's time to start with present continuous. So let's begin the session. See, in the last video I told about present simple, how to change the active sentence of present simple into passive, and now I am starting with present continuous. Okay, present continuous. In present continuous we use the helping verb is, am and are, plus as it is gerund form of the first form, gerund form of the main verb is used in present continuous. So because of that we have to use being here, and then the be third means the third form of the main verb, and then the subject, and here should be object. Okay, so this is the structure of a passive sentence of present continuous tense. For example, he is writing a story. Okay, this is an active sentence of present continuous. Now I am going to change this into passive. So the object is a story. So a story, and the object is singular. So we'll use is here. A story is, then being, and then the third form of the main verb, and the third form will be written. A story is being written, and then by, and this subject will be changed into object, and it will be written as him. So this is the passive construction of this sentence. A story is being written by him. Is it clear? One more sentence. If I want to make this negative, so how will I change this into negative sentence or negative passive? So I have to place not here. If I place not here, this becomes a negative passive sentence of present continuous tense. I write one more sentence. See, she is washing. Sorry, she is not washing clothes. She is not washing clothes. This is the negative sentence. So let's change this into passive. So the subject is cloth, and this is plural because s is there. So we will place are here as helping verb. Cloths are. This plural object we will place plural helping verb, that is are. So cloths are, and then being. Cloths are being. Then the main verb is washed, and the past participle form of this is washed. Clothes are being washed by, and the she will be changed into her. As I told you in the last video, she will be changed into her, and this is its objective form. So clothes are being washed by her. This is the passive sentence. Oh sorry, not will also be there because the active sentence is negative, so the passive sentence will also be negative. So clothes are not being washed by her. This is the passive construction of this negative sentence of present continuous tense. Is it clear? अब हम आगे चलते हैं. Now we write an interrogative sentence. Interrogative. Interrogative that starts with helping verb, and the helping verbs are is, am or are. So I write a sentence: are you writing a story? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये किससे शुरू हो रहा है? आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब से. नाउ आई हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव. सो वंस अगेन, first of all, the object is singular, so I will place
इज हियर। ओके, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इज, एम और आर प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस बीइंग प्लस V3 एंड प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी, और ये कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, इज, तो मैंने लिखा यहाँ पे इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, इज ए स्टोरी। उसके बाद आएगा बीइंग, इज a story being, then the first form here is, the main verb is write and the third form will be written. Is a story being written by, and the objective form of you will be you, so you and question mark. So is a story being written by you? Clear? ये इसका पैसिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, इज शी कुकिंग फूड। ठीक है, इज शी कुकिंग फूड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, और फूड हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। तो मैं इज फूड, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट इज फूड। अब क्या लगाएंगे, बीइंग, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो इज फूड बीइंग, अब कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, is food being cooked by, और ये जो she है इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, her में, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये हो गया is food being cooked by her, ये इसका पैसिव हो गया, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का, that starts with helping verb। अब एक और इंटरोगेटिव बच रहे हैं, which are WH इंटरोगेटिव। ठीक है, तो देखिए अब WH इंटरोगेटिव में मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं WH वर्ड ऐड कर दूंगा। ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था इसमें हम WH वर्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर चेंजिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। ओके, किस तरह का पैसिव, दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। इज इट क्लियर? अब देखिए ये जो सेंटेंस मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसमें WH वर्ड ऐड कर देता हूँ। जैसे ये, और मैंने कर दिया वाई आर यू राइटिंग अ स्टोरी। अब इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, इसमें बस कोई ज़्यादा चेंज नहीं, हम लिखेंगे पहले WH वर्ड, और उसके बाद जिस तरीके से हमने अभी हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव्स को चेंज किया था पैसिव में, द प्रोसीजर विल बी सेम। उसी सेम प्रोसीजर के हेल्प से हम इसको चेंज कर देंगे। Why is a story being written by her? Sorry, by you. By you. ये इसका पैसिव हो गया। तो समझ में आई बात कि अगर यहाँ से WH वर्ड को हटा दें एक्टिव सेंटेंस में से, तो पैसिव में से WH को हटा दो, और ये किसका पैसिव बन जाएगा फिर, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम WH वर्ड ऐड करते हैं, तो जो भी WH वर्ड एक्टिव सेंटेंस में है, द सेम WH वर्ड विल बी रिटन इन पैसिव एंड दिस इज विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, then the helping verb, and the helping verb will be according to the number of the object. So after the helping verb, object, and after the object there will be be, and then the participle form of the main verb that is given in the active sentence, and then by, and then objective form of the subject. Okay, so we wrote the same you because you is the objective form of you and there is no change. Is it clear? तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है WH इंटरोगेटिव, अगर हमें ऐसे नॉट नेगेटिव बनाना है,
इंटरोगेटिव पे ऑलरेडी है. इफ वी वांट टू मेक इट नेगेटिव, सो वी हैव टू प्लेस नॉट. बट वेयर, कहाँ पे हम नॉट प्लेस करेंगे? यहाँ होगा ये नॉट. कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के बाद. अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट प्लेस कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब आगे चलते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद अब हम आगे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और प्लस बीन. ओके. उसके बाद B3 और फिर preposition by and then subject. तो अगर आपको किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा, ये फॉर्मूला होगा. आई राइट अ सेंटेंस हियर. सी, he has completed the project. ये है, he has completed the project. ठीक है. अब इसमें प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं. तो इस फॉर्मूले को आप देखते जाइए. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव करेक्टली. सो द प्रोजेक्ट, ओके. अब ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा? हैज. अगर प्लूरल होता तो क्या आता? हैव. तो यहाँ लिखेंगे हैज. उसके बाद क्या आएगा? बीन. The project has been. Our third form is already given in the active sentence, so the same will be written here in the passive. Completed. Okay. The project has been completed by, and change he into object, so it will be him. तो ये हो गया the project. सिंगुलर है तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया पहले. उसके बाद हैज आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है. उसके बाद बीन आ गया. उसके बाद थर्ड फॉर्म जो एक्टिव सेंटेंस में पहले से दी हुई है तो ये कंप्लीटेड हो गया. उसके बाद बाय एंड देन इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट का, तो हिम. ठीक है. तो ये हो गया द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम. क्लियर? तो ये आपको याद रखना है. प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे? हैज, हैव प्लस बीन. बाकी सेम प्रोसीजर है, वही हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करना है. तो इस बात का विशेष ध्यान रखना जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इफ यू आर चेंजिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, सो कंपल्सरीली द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विल बी यूज्ड इन पैसिव सेंटेंस. हमेशा पैसिव बनाते समय हमें थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करना है मेन वर्ब का. ठीक है. तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का. अब देखते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस. जैसे इसी को नेगेटिव बना दें तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. अगर ये है तो अब मुझे नॉट प्लेस करना होगा. नॉट कहाँ प्लेस होगा? यहाँ हैज और बीन के बीच में. हैज और बीन के बीच में जैसे ही आप नॉट प्लेस करोगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव पैसिव सेंटेंस बन जाएगा. अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे. ठीक है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? इसमें ये जो हैज, हैव है इसको ऑब्जेक्ट से पहले लिखना है. तो इनकी जगह हम बदल देते हैं. यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हैज है, हैव. ठीक है. अब एक सेंटेंस लिखते हैं. हैज ही finished the lesson. ये है has he finished the lesson. ठीक है. अब मुझे इसको चेंज करना है
तो यहाँ पे पहले तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द लेसन, और लेसन कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही होगी एंड द हेल्पिंग वर्ब विल बी हैज, तो हैज द लेसन, ठीक है। और उसके बाद होगा बीन, हैज द लेसन बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन इन द एक्टिव सेंटेंस, फिनिश्ड, हैज द लेसन बीन फिनिश्ड बाय, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसको आप चेंज कर दो हिम में, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, सो हैज द लेसन बीन फिनिश्ड बाय हिम, ये इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसे हो गया, किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब बात आती है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो देखिए जैसे ये लिखा हमने why have they played football, जैसे ये है why have they played football, अब इसको मुझे चेंज करना है पैसिव में, है ना, तो पैसिव में चेंज करने के लिए अगर ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम WH वर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये WH इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पैसिव सेंटेंस बनाने का, ठीक है। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, और WH वर्ड इज ऑलरेडी गिवन हियर, सो राइट द सेम WH वर्ड why and then object will be football, so why, why के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज, क्योंकि फुटबॉल कैसा है, सिंगुलर, सो why हैज, उसके बाद फुटबॉल, why हैज फुटबॉल, उसके बाद बीन और प्लेड, why हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय, अब देखिए ये जो दे है इसको हम दैम लिखते हैं, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन एक बात और याद रखिए कि यहाँ दे जो है इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, अगर मैं आप बाई दैम लगाएं तब भी ठीक है और नहीं लगाएं तब भी ये ठीक है, यानी इसको अगर हम यहीं पे छोड़ दें प्लेट पे तब भी ये करेक्ट है, और अगर बाई दैम लगा के हम इसको लिखते हैं तब भी ये करेक्ट है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज इट क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस की तीनों ब्रांचेस हमने कंप्लीट कर ली, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हम हैज और हैव यूज करेंगे, उसके साथ बीन यूज होगा, थर्ड फॉर्म तो यूज होगी ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें इज, एम और आर यूज होगा, और प्लस बीन, BEING, बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें भी इज, एम और आर यूज होगा, लेकिन उसमें बीइंग या बीन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें केवल थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस के तीनों ही ब्रांचेस के सेंटेंसेस का पैसिव में चेंज करने का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम पास्ट पे, किस पे, पास्ट। तो देखिए पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, आपको पता ही है कि पास्ट सिंपल की पहचान क्या है एक्टिव सेंटेंस में, कि उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। हमने लिखा ही अब्यूज्ड हिम, ठीक है, ही अब्यूज्ड हिम। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको चेंज करने का जो तरीका है वो क्या है, का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर और प्लस V3 और प्लस यहाँ पे हुई बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के हम लिख देंगे, ठीक है। तो शुरू करें,
ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास हिम, इसको हम चेंज करेंगे जब सब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही में। हिम को चेंज करेंगे ही हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो, और ही को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हिम हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे करना है। तो ही, और ही कैसा है? सिंगुलर, तो उसके साथ क्या होगा? वॉज। ही वॉज। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है, इसकी सेकंड फॉर्म भी यही है, और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है? अब्यूज। और अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म अब्यूज और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो ये लिख देते हैं हम यहाँ। तो ही वॉज अब्यूज। अब बाय, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? हिम। तो ये हो गया इसका पैसिव। ही वॉज अब्यूज्ड बाय हिम। बात क्लियर? अब देखिए, अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं पास्ट सिंपल का। ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। ये लिख दिया, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, ठीक है। अब ये है ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो हिज वर्क, ठीक है। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि डिड आ गया तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो बस इसके साथ यूज करेंगे वाज। हिज वर्क वाज। अब नॉट दिया हुआ है तो नॉट। ये डिड जो है ये केवल नेगेटिव सेंटेंस में होगा, एक्टिव नेगेटिव सेंटेंस में होगा। पास्ट, आई एम सॉरी, पैसिव सेंटेंस में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई ये पैसिव सेंटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ये केवल ये बताने के लिए है, आई मीन इसको नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें डिड की ज़रूरत होती है बस, और इसके अलावा इसका कोई प्रभाव या कोई यूज पैसिव में नहीं है। तो हिज वर्क वाज हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर है ये ऑब्जेक्ट, तो हिज वर्क वाज नॉट। अब इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। हिज वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाय, अब यहाँ पे ही दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। तो ये हो गया नेगेटिव पैसिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो कैसे इंटेरोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे ये है डिड ही अब्यूज यू। ये है, देखिए, डिड ही अब्यूज यू, क्या उसने तुम्हें गाली दी, ठीक है। अब इसको चेंज करना है हमें पैसिव में, तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिखें या पहले चेंज करें? चलिए पहले चेंज करते हैं। क्या होगा? ये यू है, इसको प्लूरल में काउंट करते हैं हम, तो प्लूरल में काउंट करते हैं तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? वर यू, हाँ, उसके बाद थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, और बाय, और ही की जगह क्या लिख देंगे? हिम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। वर यू अब्यूज्ड बाय हिम, ये हो गया इसका पैसिव। अब इस सेंटेंस के बेसिस पे हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होगा? वाज और वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वर यू अब्यूज्ड बाय हिम। यू जो है वो प्लूरल में काउंट होता है, इसलिए यू के साथ क्या आएगा? वर। क्लियर? अब आते हैं हम WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि WH इंटेरोगेटिव में क्या करना है। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसमें हम आगे WH वर्ड ऐड कर देंगे, तो ये आई मीन पैसिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा जो WH वर्ड से शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लिखें वेयर डिड ही
abuse you, ये हो गया, इसने तुमको कहाँ पे दी गाली, किस जगह पे, है ना, वो स्थान। तो where did he abuse you। अब इसको चेंज करते हैं हम पैसिव में, तो देखिए सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे हम where ऐड कर देंगे और where ऐड करते ही ये पैसिव हो जाएगा। तो देखिए where, उसके बाद were, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल है, सो where were you, उसके बाद थर्ड फॉर्म abused, where were you abused by, और यहाँ पे ही दिया हुआ है सब्जेक्ट, उसको चेंज कर देते हैं him में, और ये हो गया इसका पैसिव, where were you abused by him। Is it clear? So this is the passive of WH interrogative sentence of past simple। Is it clear? So this is past simple before you। It is so easy, very much easy chapter, active to passive sentences, really very much easy chapter। Okay? तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियोस में ये कहा भी था कि इफ समवन नोज टेंसेस वेल, सो he can easily change an active sentence into passive। तो ये हमें ध्यान रखना है टेंस का। अगर टेंस में कहीं गड़बड़ हो गई या उसको उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में कहीं गड़बड़ होती है, so then it may be a big problem, because without the knowledge of tense it is really difficult to change an active sentence into passive। So guys, I hope you understood this lesson well। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, so please subscribe my channel and share it with others, and press the bell icon also, so that you can be notified for my upcoming videos। So next video में हम और आगे की बात करेंगे। Till then, bye, thank you।